this event particularly with more energy and more power every single year. So I would like to put up a question before we go to our next segment. What do you get when you mix an IIT Delhi dropout, a Facebook page, and a 60-word news summaries? It's not, I could just hear a few of the front rows here. So can we together speak the answer? At the count of 3. You know the answers back there, right? What do you get? We get in shorts, that absolutely correct. But now together we have to speak. So at the count of 3. 1, 2, 3. Lovely. So, yes, absolutely. When you mix all these 3 things, you get a startup revolution called In Shorts, and the man behind it is Azhar Iqbal. Let's elevate the energy for the man who's reshaping how India consumes news, and now empowering creators, entrepreneurs globally through no-code tools. With roots in Bihar and a vision that spans the world, let's welcome Azhar Iqbal. He's a co-founder in Shorts, building it to 10 million plus daily users. Also became the newest shark on the famed show Shark Tank India, who believes in hustle over hype. How many of you are excited to see him, speak to him, and learn from him live? Loud. Amazing. Thank you for being such a lovely audience. So, very first thing, do you remember how did you encounter or discover In Shorts, and what was your first reaction? I used to read a lot of news on Google. That's back in college. My friend just came and told me, तूने In Shorts नहीं सुना है क्या? ये क्या कर रही है बैठ के? Right. तो मैंने कहा वो क्या होता है? That time I downloaded the app to read the news in 60 words and in few minutes in between the lectures. Oh, lovely. Amazing. Yes. So anybody else who would like to, thank you so much for sharing that. And we will have him in some time. And as he's making his way to this hall, we have to keep the energy high. And let's give him a huge round of applause. The applause should be louder than the audio we have here. Yes. Let's welcome the shark from the Shark Tank India, Mr. Azhar Iqbal. And to moderate this conversation, this fireside chat, I would like to again invite Rachit Poddar and Pratik Toshniwal to lead the fireside conversation with him and leave us with another insightful panel, I would like to say. So, are we excited? So this is, to the best of my knowledge, this is second visit of Azhar in Surat. Yes? Can anyone wildly guess his age? Wildly. He looks Sorry? like 24 to me. 26. Okay. 24 to me. Any more guesses? 2 more chances. 25. ये best था. Last one. Excellent. Google पे answer मिल गया आपको. Very good. But, you know, what he's built at his age is an inspiration and dream for a lot of young entrepreneurs like us and you all sitting in the crowd. So a huge round of applause for Azhar Iqbal for creating and disrupting news media agencies in just, you know, a way that In Shorts पे आ गया. So सबसे best news तो यही होगा. So thank you so much Azhar for being in Surat. And I would start from a very, young journey of yours, IIT. What was one drop everything moment that pushed you off the conventional path and just jump into this field? तो अगर first of all, thank you Pratik bhai for inviting here. आप जितना मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछने का कि ये काम क्यों शुरू किया अगर रफली लेंगे
तो मैं अपने कॉलेज डेज में चला जाता हूँ तो मैं बोलूँगा शायद इसके रीज़न ये होगा कि जीपीए कम था, मतलब कॉलेज में जो सीजीपीए होता है वो कम था। दैट वाज द रीज़न कि ये पाथ चूज़ किया था, क्योंकि अगर आपका जीपीए कम होता है तो आपको मास्टर्स के लिए टॉप कॉलेज से कट ऑफ हट जाता है और टॉप कंपनीज भी आपको प्लेसमेंट में बैठने देती नहीं है, तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो थर्ड ऑप्शन यही था। सो जब आपने ये रास्ता चुना, बिजनेस बनाया, तो वो एक क्लिक फैक्टर होता है ना कि हाँ यार अब तो हम कर ही लेंगे, अब तो हम फाड़ ही लेंगे, वो मोमेंट कब आया? चलो आपने कर तो लिया, शायद आपने एक क्योंकि फेसबुक जीत पेज गए से बनाया था, राइट? आपने यू स्टार्टेड विद फेसबुक पेज एंड देन हाँ, तो आई थिंक अगर इस चीज़ को लेते हैं तो मेरे को लगता है किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे केस में भी दिखने लगा था हमें। तो जैसा मतलब इस पे लेते हैं तो हमने अपनी जर्नी चूँकि एक फेसबुक पेज से शुरू की थी, तो जैसे मेरे कॉलेज में वो मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला था बेसिकली उस टाइम पे जब हमने अपना फेसबुक शुरू किया था। तो 3 साल तक कॉलेज में लोग नहीं जानते थे, सडनली उस पेज के कारण से लोग जानने लगे थे, तो दैट वाज अ गुड इनफ वैलिडेशन कि हाँ लोगों को कुछ तो अच्छा लग रहा है, तभी लोग पेज फॉलो कर रहे हैं। Excellent. Azhar, coming to the next question, you know, we've seen short form news coming out of in shorts. 60 words में आप एक बहुत बढ़िया buzzing highlights दे देते हैं news का. But उसके पीछे का back end work क्या जाता है? You know, what is the, how do you authenticate those news? What is the size of the team that is working behind to curate such news from across all the sources? तो अगर जैसे एक चीज़ पे हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग अपने से न्यूज़ आज सच रिपोर्ट नहीं करते हैं, वी हैव आवर पार्टनर सोर्सेज, तो हम उन पे रिलाई करते हैं सारे न्यूज़ के लिए जो टॉप पब्लिकेशंस ऑफ द कंट्री हैं, उनसे हम उठाते हैं और देन वी समराइज इट एंड पब्लिश इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Nice. And अब क्या इन शॉर्ट्स का वैल्यूएशन होगा एक मोटा फिगर? I think, you know, traditional media का शायद एक वैल्यूएशन probably would be within 100 वो 100 सब crores, but वैनिटी नंबर्स होंगे कुछ भी, तो उन पे डिबेट में कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं, सो सी आपने इंशॉर्ट्स बनाया, आपने जर्नी बनाई, आई थिंक 600 लोगों की टीम है आपकी जो काम करती है 60 वर्ड्स को डील करने में, एंड आपके पार्टनर्स भी हैं। ये जो टीम, बिकॉज सी यहाँ पे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबको टीम बनानी पड़ेगी अपनी जर्नी में, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप को फाउंडर्स कैसे चुनते हो या आप टीम कैसे बनाते हो, कैसे ट्रस्ट करते हो, बिकॉज हायरिंग एंड फायरिंग इज पार्ट ऑफ द जर्नी, आपको लोगों को निकालना भी पड़ता है। तो वो जो जर्नी है, मैं चाहूँगा कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स सीखें कि कैसे बनाई जाती है। ऑफ कोर्स उसमें हिट्स होंगे, मिसेस होंगे, बट आपने कैसे बनाई एंड हाउ दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स कैन लर्न थ्रू दैट। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ शुड वी सेलेक्ट पीपल, अगेन मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो एक मतलब अपने साइड से पॉइंट रखना चाहता हूँ कि सब किसी के अपने अपने रूल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरे लिए क्या वर्कआउट किया मैं वो शेयर करता हूँ, क्या ये सबके लिए करेगा या यही जनरल मेथड, आई डोंट नो। तो मेरा मेथड जनरली जो रहता है, मैं एक फैक्टर को एक्सट्रीमली लाइफ में वैल्यू देता हूँ, मतलब एक्सट्रीम हेवीली। जब भी किसी को किसी भी पर्सन से मैं बात करता हूँ कि उस पर्सन में एनर्जी कितनी हाई है, मतलब या फिर वो कितने क्वेश्चंस पूछता है, मतलब क्यूरियोसिटी, ये सारे एक ही मेट्रिक पे आ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है जो बंदा क्यूरियस है और एनर्जेटिक है वो आज नहीं तो कल चीज़ें सीख लेगा, तो मैं उस फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। एक्सीलेंट। So I think coming to the next question, you know, I think everybody's talking about artificial intelligence. It's become a new buzzword. In fact, we've all started adapting to ChatGPT and things, tools like that. But how do you think ChatGPT, or sorry, artificial intelligence as a whole, can play a vital role in your organization? तो डेफिनेटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आई बिलीव अक्रॉस ऑल बिजनेसेस इतना बड़ा चेंज हिस्टोरिकली प्रॉब्ली ह्यूमन हिस्ट्री में ही शायद कभी नहीं आया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वो जो होगा, जो इंटेलिजेंस है वो ऑन टिप ऑफ अ बटन अवेलेबल है। मतलब तो ये अगर लेंगे प्रॉब्ली, अभी हम लोग उसके अगेन अर्ली डेज में ही है। कुछ दिन बाद तो कहा जाता है कि जितने भी इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट नॉलेज है, चाहे जैसे एक नॉलेज ऑफ डॉक्टर ले लेंगे या नॉलेज ऑफ एन इंजीनियर, नॉलेज ऑफ ए लॉयर, नॉलेज ऑफ ए सी, ये आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से दे देगा। आपको यूज़ कैसे आपके बिजनेस में करना है या आप कैसे अपने मतलब लाइफ में उसको हेल्प लेना है वो फिगर आउट करना होगा। बट इस चेंज के कारण से जो वर्ल्ड का डायनामिक्स है अगले कपल ऑफ ईयर्स में सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाली है, तो हमारे बिजनेस में भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। सो अजहर, आपने अपने बिजनेस में क्या ऐसा जुगाड़ लगाया या क्या तरकीबें ऐसी की जो सिंपल चीज़ को बहुत एलिगेंटली प्रेजेंट किया
और अब एक एडिक्शन सा हो गया है कि यार बस देखा और समझ गए। इसके दोनों साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी क्योंकि लोगों को 60 वर्ड्स में पूरा न्यूज़ मिल गया, उनको पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और सेकंड पीपल कैन से एक तो आधी न्यूज़ है, राइट? तो दोनों साइड है। सो हाउ डू यू फील एंड आपकी क्या विचार है इस पे? सी अगर आप वैसे देखेंगे आधी न्यूज़ का उस पर, तो एनीवे वी हैव एन ऑप्शन टू गो एंड रीड द फुल स्टोरी, तो आपका फुल पिक्चर के आपके ऑप्शंस तो एनीवे हैं। और शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ मिल जाता है मोस्ट ऑफ दी चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपको शायद एक ब्रीफ नॉलेज आपके लिए काफ़ी है, तो वो दोनों नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप अगर फुल चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिल रहा है। सो क्रिटिक्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली कि यू नो, क्योंकि देखो सबके पास टाइम उतना ही होता है, राइट? उनको 10 न्यूज़ पढ़नी है, 10 न्यूज़, वो 10 स्लाइड्स किया और न्यूज़ मिल गए। तो यू हैवंट हर्ड क्रिटिक्स इन थ्रू आउट द जर्नी कि कभी क्रिटिक्स ने आपको बोला नहीं कुछ? नहीं, एंड अगर critics- बोला भी, critics अगर हमारे बोला भी business- तो आपने कैसे ओवरकम किया? क्रिटिक्स तो हर बिजनेस के हर चीज़ के मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आपको देखना है कि आपको प्यार करने वाले कितने मिल रहे हैं, वो इनफ है तो बिजनेस चलता रहेगा आपका। So Azhar, you made a big appearance on the Shark Tank India. You know, what was that journey? कैसे चालू हुआ और you know, what do you think about Shark Tank India as a series? आई थिंक मैं सीज़न 3 का पार्ट था और सीज़न 4 का। तो जब सीज़न 1 आया था, मैं तो बिग फ़ैन हूँ मतलब उस शो का, और मुझे लगता है वो शार्क टैंक इंडिया शो का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ ना, हालांकि इंडियन आप इकोसिस्टम को लेंगे तो 2007 के टाइम से ही जब से फ्लिपकार्ट आया, धीरे धीरे इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा था, और 21 तक इनफ मतलब 15 साल में काफ़ी ही मतलब बोलेंगे तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉमन हो चुका था। बट शार्क टैंक ने उसको कॉमन कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना दिया। मतलब अब आप छोटे शहर में ही चले जाते हैं तो लोग बात कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया शार्क टैंक का है कि उसने इसको मास बना दिया, हर पर्सन बात करता है। इनफैक्ट जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, जब मैंने इन शॉर्ट्स स्टार्ट किया था, मैं वन ऑफ द फ्यू पीपल रहा हूँगा जो स्टार्टअप करने की बातें कर रहा था, स्टार्टअप करने का सोच रहा था। 10 years डाउन द लाइन अगर आज आप IIT से छोड़िए किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे तो उनका पहला ड्रीम होता है अपना बिजनेस करना। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को फ्यूल देने में तो शार्क टैंक ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, तो एटलीस्ट डे टू डे कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए तो काफ़ी हेल्प किया है उसने। सो टेकिंग दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेते हैं। सॉरी मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वी हैव अ ग्लोबल ऑडियंस, बट हमारा इंटेंशन ये, शार्क टैंक भी इस इवेंट से जुड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सीजन 5 भी आ रहा है। एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, एक तो होती है रील सिनेमा स्टोरी जो शार्क टैंक दिखा रहा है, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत एम्पलीफाई कर दिया है, लोगों ने रिस्क लेना चालू कर दिया। आई थिंक रिस्क टेकर्स हमारे ऑडियंस बढ़ चुके हैं, बट जो हम थिएटर में देख रहे हैं या वो सीजन में देख रहे हैं, क्या वो 100% फैक्चुअल है या उसके अलावा कुछ चेंज होता है रियल वर्ल्ड में, सिनेरियोज में? क्योंकि चेक देना एक चीज़ होती है, ड्यू डिलिजेंस करना अलग चीज़ होती है, पैसे डालना अलग चीज़ होती है। सो ये प्रोसेस जो होता है उसको अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज देना हो इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो सीजन 5 के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? तो जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो शार्क टैंक पे जो दिखाया था वो तो इट्स ऑल रियल, बट अब डेफिनेटली जब आप वो 15 मिनट का एक क्लिप देखते हैं, दैट्स वे मोर क्या कहते हैं ड्रामेटिक, या फिर बोलेंगे इंटरेस्टिंग लगता है आपको। आप जब जेन्यून बिजनेस करने जाएंगे शायद तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उतनी इंटरेस्टिंग ऑन द फ्लो शायद साउंड ना करे, वो तो सच्चाई होगी, बट जो चीज़ें हमें वहाँ दिखाई जाती है वो परफेक्टली मतलब क्या कहते हैं रियल ही होती सारे कॉन्वर्सेशंस। अब जैसे आपने बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट्स होता है, ड्यू डिलिजेंस होते हैं, तो ओवरऑल बिजनेस के तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो इन जनरल किसी भी पार्ट को उठा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं ब्रॉडली वैसे ही देखूंगा उस चीज़ को। सो आपके लिए क्या मैटर करता है, एग्जिट, इम्पैक्ट या इनबॉक्स जीरो? तो ये सवाल आप मुझसे किस क्या स्टेज पे पूछेंगे वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट प्राइमरीली अगर मैं बोलूँगा तो जैसे जब मैं अपने स्टार्टिंग के डेज पे तो मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, जिस दिन मैंने बिजनेस शुरू किया था मेरा एक ही पर्पस था, पैसे बनाना। मुझे किसी इम्पैक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं मुझे इसी एक नंबर से फ़र्क पड़ रहा था। एज लॉन्ग एज वो इथिकली मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, मुझे और किसी नंबर से किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। Excellent. Amazing. So Azhar, I think there are a lot of entrepreneurs जो आज capital raise करने आए हैं, अपना कोई अलग अलग stages पे हैं startups के, तो उनको अगर if they want to pitch their idea to you, how do they reach out to you, and what is that one thing that you would look at when you're investing into the company? ठीक है, डेफिनेटली मैं उस पर मैं एक चीज़ आई थिंक
कंपनी के अगर लेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स को तो मैं देखने की कोशिश करूंगा, मतलब अगर मेरे को उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड क्या दिखता है, वो सारी चीज़ें तो मैटर करती है। बट ब्रॉडली मैं अगेन उसी एक चीज़ पे आ जाता हूँ जो मैंने हायरिंग के लिए बोला था, वो मैं किसी भी जगह देखने की कोशिश करता हूँ कि कितना इनक्विजिटिव या कितना क्यूरियस है उसका फाउंडर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक वो ओवर ईयर्स बहुत हेवीली कंपाउंड करता है और ओवर टाइम उस क्यूरियोसिटी का बहुत आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है मेरे लिए। बहुत बार ये बोला जाता है जब फेम मिलता है तो आदमी हम्बलनेस भूल जाता है, राइट? वो ग्राउंडेड नहीं रहता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज माई एक्सपीरियंस। आई थिंक इनको मैंने जितना परेशान किया होगा क्वेश्चंस भेज के, इनके अप्रूवल्स लेके, आई हैव नॉट मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट हिज स्टारडम जिन्होंने इतना पेशेंटली उस पूरे जर्नी को जिया है। आई थिंक ही केम फॉर अस फॉर 2 days, ही इज देयर विथ अस, ही इज गाइडिंग अस। एंड इतना हम्बलनेस का रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत लोग को जब सेलिब्रिटी टैग लग जाता है, या मैं शार्क बन गया, मैं ये हो गया, तो हमने देखा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। मे बी शायद शार्क टैंक से नहीं होता होगा, पर बॉलीवुड में भी हमने देखा है ये। तो वो हम्बलनेस आपके लिए कितना मैटर करता है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, अब इसको तो मैं आप कैसे वर्ड करते हो देखना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है आप ब्रिंगिंग ऐसे रही है और मेरे को लगता है यही वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए, मतलब दैट्स हाउ वी ऑल शुड बिहेव, मतलब तो वो तो मतलब प्योर प्ले पर्सनल चॉइस हो जाता है। मैं I think that's a big lesson. This should be the way of life. Exactly. This should be the way of life. That is very, very important, right? I think you put it up very, very well. So that's. I think let's open the floor for questions. I think I lot of think people young waiting to answer entrepreneurs are those on the questions. floor. Yeah, They have definitely. questions, so we would love to have questions from them. Yes, Moni. Same thing that Pratik said, at your level you're being, I think what worked for you, it's my perspective, what worked for you really is your simplicity. कोई भी आप पे तुरंत ट्रस्ट कर लेगा. I think that is one thing. My question is, what worked for you apart from this? What worked for you to make you so successful for what you're doing? आपके लिए क्या काम सबसे ज़्यादा, one thing or two things? आई थिंक मैं अपने बारे में एक चीज़, जैसे जो मैंने बोला, मैं जब लोगों में भी जो क्वालिटी खोजने की कोशिश करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अंदर भी वो क्वालिटी काफ़ी बार डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। जनरली मेरे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, मैं किसी भी जगह, मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने लाइफ में मिला हूँ वैसे लोगों से जो मेरे से अधिक सवाल पूछता होगा। मुझे लगता है आप जितने सवाल पूछोगे धीरे धीरे आप उतने चीज़ों को समझना शुरू करोगे। तो मैं एंड नॉट ओनली इन माई फील्ड, मैं किसी भी जगह बैठा रहता हूँ, अगर मैं एक रेस्टोरेंट में भी जाके बैठा रहता हूँ तो मैं उसका भी समझने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं और मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ ये एक एटीट्यूड अपने लाइफ में लेते आओ कि जितने सवाल पूछ सकते हो उतने पूछो। और बिजनेस भी शायद ऐसे ही बनता है, जब आप बहुत सारे सवाल पूछते जाओगे तो आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, जिनके नहीं मिलेंगे दैट इज मीन्स कि वहीं पे आप बिजनेस बना सकते हो, अगर सिंपली पुट तो। Wow, thank you man. Hi, my name is Nenika, founder of Shortbread, and I have a question today. So, a lot of people, young people especially, when they start their own business, they expect results too soon, and when they don't get it, they feel like just giving up. So, how do you deal, can you just suggest something? How can we deal with that feeling? Because it's something like a lot of people face it. सी अगर आप उस तरह लेंगे, देखो ये फीलिंग सबके अंदर ही ब्रॉडली आती है यार कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब वो वाला एंगल रहता है ब्रॉडली। बट एक चीज़ जो जनरली मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब अपने पे आप कॉन्फिडेंस रखोगे और चीज़ें थोड़ी कुछ जगह में टाइम ले रही होती, इटरेट आपको करना होता है। मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था इन शॉर्ट 2013 में, उसके पहले भी 2 साल पे मैंने 4-5 अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ ट्राई किए होंगे जो वर्कआउट नहीं कर रहे होंगे, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का आप उठा के देख लेंगे तो उनके वो करंट बिजनेस सक्सेस होने के पहले चांसेस आर कि कुछ ना कुछ पास्ट में फेल्ड चीज़ें रही होंगी, बहुत हेवी चांसेस रहे होंगे। तो वो पार्ट ऑफ लाइफ ही है सबका, अगर मैं बोलूँगा तो उसको मान के चलो कि वो आपके साथ ही नहीं हो रहा है, वो सबके साथ ही वैसा ही हो रहा है। Okay, thank you. हेलो,
Good evening, I'm Mamta Podar here. I just wanted to know, मतलब you inspire people, but आप inspiration कहाँ से लेते हो और आपका source क्या है? आप किससे inspire होते हो? और just guide us के life path में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? So, आज के डेट पे तो मैं बोलूँगा काफ़ी सारे ही लोग हैं जो मतलब क्या कहते हैं इंस्पायर करते हैं, बट अगर 1% मैं लूँगा जिसके कारण से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो सचिन बंसल और फ्लिपकार्ट होंगे। मतलब जब वो मेरे ही कॉलेज के सीनियर थे तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। वो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स भी रहे इन शॉर्ट्स में, तो उनसे काफ़ी कुछ मतलब सीखा है मैं बोलूँगा। Thank you so much. अजर समटाइम कभी कभी हमें ऐसा होता है कि बीइंग अ फाउंडर्स हमें ऐसा लगता है कि हम कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं और हम कभी कोई इन्वेस्टर्स या अप्रोच करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यू आर वेरी मच अर्ली स्टार्टअप हो, प्री रेवेन्यू हो, जिसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ 7 करोड़ होनी चाहिए। एंड देन साइड बाय साइड वी सीन्स दैट देयर आर मेनी कंपनीज सीड फंडिंग में 10-10 करोड़ के फंडिंग रेज होते हैं। उसका जेन्यून कारण क्या होता है? बिकॉज फ़र्क दोनों का इंटेंसिटी ऑफ फाउंडर्स सेम है, प्रोडक्ट्स से अच्छी प्रोडक्ट्स है दोनों की, बट दोनों की फाउंडेशन वैल्यू अलग हो जाती है फंड रेजिंग की। क्या कारण होता है आइडियली? अच्छा, तो इस पे अगर लेंगे तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन जो होता है इसके पीछे का कोई साइंस तो है नहीं हमारे पास, कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं कि इस रूल्स के बेसिस पे वो होगा। अब अल्टीमेटली आप उस चीज़ को देखोगे तो वो वैसा है कि जो बंदा मतलब जो स्टार्टअप और जो उसका इन्वेस्टर्स है उन मतलब वो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टर और स्टार्टअप के आपस के कॉन्वर्सेशन, आपस के कॉन्फिडेंस पे जो एक फेथ पे वैल्यू लग पा रहा है वही है। इसके पीछे का कोई मतलब लॉजिक नहीं कि वायस हो। और बहुत बार आप हिस्टोरिकली देखेंगे ऐसा नहीं कि जो अभी ज़्यादा वैल्यूड है कल को ज़्यादा ही रह रहा होगा। हो सकता है कोई कम वैल्यूड स्टार्टअप जो आज के डेट पे 6 मंथ डाउन द लाइन, ईयर डाउन द लाइन उसकी चीज़ें चेंज हो जा रही है, बट इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं निकाल पाएंगे। तो आप उसको ऐसे ही मान सकते हो कि दिस इज हाउ इट इज। बिग शॉट ऑन दिस, के बेस्ट शॉट दे दो अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू। So my question is, मतलब when the startup culture was very new, तो लोगों का motive was to create a long-term impact on the society. अब when I talk to many founders, they basically say कि मतलब valuation अच्छी मिलेगी मैं बेच दूंगा। And now I want to ask you कि आप ये culture shift कैसे देखते हो and what is the impact it will have on the startup culture in India? नहीं, बट अगर तो मैं तो मतलब मैं तो शुरू से ही उस चीज़ पे था कि अच्छे दाम देगा बेच दूंगा, कोई गलत मुझे तो नहीं लग रहा होता है। मतलब अगर खरीदने वाले को लग रहा है वो सही चीज़ खरीद रहा है, मेरे को लग रहा है बेचना है, बेच दूंगा मैं, पैसे बन जाएंगे। तो मुझे फंडामेंटली मुझे सबसे पहली बात पैसे बनाने के तरीके से जिसको जिस तरीके से बन रहा है एज लॉन्ग एज वो इथिकल है, मुझे तो उसमें कोई गलत लगता ही नहीं है। तो मैं मतलब मैं तो इस शिफ्ट को शुरू से ही ऐसे देख रहा होता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। वी ऑल वर्क फॉर मनी, ये बहुत सच्चाई है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये मेरा बिलीफ है, दैट्स हाउ आई सी इट। तो मेरे को तो नॉर्मल लग रहा होता है मतलब वो चीज़। हेलो सर, माय नेम इज़ हार्दिक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी लीडरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए? लीडरशिप स्किल का लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का इस क्वेश्चन का मेरे पास क्लियर कट आंसर नहीं होगा, बट एक चीज़ जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा लीडर्स में एक क्वालिटी, सो इन जनरल हम ह्यूमंस के साथ एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वी ऑल मतलब क्या कहते हैं, हमें डर लगता है डिसीजंस लेने से। दिस इज़ कॉमन विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। मतलब हमें कुछ भी चीज़ डिसाइड करने के वक्त ना लगता है यार पता नहीं करें ना करें, डर लगता है हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हर मोमेंट पे। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा पर्सन ज़िंदगी में खोजने की कोशिश करते हैं जिसके माथे पर सौंप सके कि हाँ